Hi everyone, this is a video regarding the Schengen visa application process for Indians and throughout the process, what were the learnings from as a first time applicant, क्या tips and tricks रहती है. I will be sharing everything in this video. I'll be keeping this video very short. In case if you guys have any doubt, you guys can reach out to me via comment section or the details, contact details in the description box. First step था जो रहता है plan you go and you decide, okay, I need to visit Europe, I need to visit some countries. So you will be preparing your some rough plan, right? Like I'll be visiting this country, this that country and all that. So determining which country, आपने अगर रफ आइडिया बना लिया तो आपको पता होगा कि आप कौन सी कंट्री में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं. सो आपका तो पहले जब प्लान बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा इन विच कंट्री यू आर गोइंग टू विजिट, इन विच ऑल कंट्रीज. ओके, सो फर्स्ट अगर सिर्फ सिंपल आइटनरी है आपकी, आप एक ही कंट्री विजिट कर रहे हो, लेट्स से इटली और फ्रांस, तो इट्स वेरी सिंपल. विच एवर कंट्री यू आर गोइंग टू विजिट, यू नीड टू अप्लाई दी वीज़ा फॉर दैट इन दैट एम्बेसी ओनली. अगर आप मल्टीपल कंट्रीज विजिट कर रहे हो, लेट्स से यू आर विजिटिंग फ्रांस, नेदरलैंड एंड ऑल दैट मल्टीपल कंट्रीज, सो इन दैट केस आप जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले और द लॉन्गर नाइट्स, in that country only you are supposed to apply for visa, Schengen visa. लेट्स से आपको मैं अगर एग्जांपल दूँ, आप अगर विजिट कर रहे हैं फ्रांस फॉर 5 days, नेदरलैंड्स फॉर 7 days, तो आप अप्लाई करेंगे नेदरलैंड्स एम्बेसी में, ना कि फ्रांस, बिकॉज यू आर स्टेइंग हियर फॉर 7 days. एंड इन इवन दो आपका अगर पॉइंट ऑफ एंट्री शेंगेन एरिया में फ्रांस है, that doesn't make, like, it doesn't matter. You have to apply in whichever country you are going to stay longer. लेकिन इस केस में ये कंफ्यूजन हो जाता है, अगर आपका सेम है, इधर भी 5 days है, यहाँ पे भी 5 days है, देन इन दैट केस यू आर सपोज टू अप्लाई जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम एंटर होने वाले इन शेंगन एरिया. सो इन केस इफ योर फ्लाइट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, let's say you are flying from Bengaluru, then you had a layover at some XYZ country, and then from there you are entering France. That means that you need to apply at France only. Or you have a direct flight, that also doesn't matter. You need to apply at France. So if I hope this is clear. आपको डिसाइड हो जाना है आप आफ्टर डिसाइडिंग कि आप कौन सी कंट्री में आप अप्लाई करने वाले. आफ्टर डिसाइडिंग आप कौन सी कंट्री में अप्लाई करने वाले, द नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक द VFS slot in that country, VFS slot availability for visa application, right? What happens is, like, Schengen visa जब आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको the countries, like the rule here is like in India, you will be booking an appointment at VFS center, through which you will give VFS center में आप जाएंगे and you will provide all the documents, and from there the VFS will take care of your application and you will get the visa approved or denied based on your application, right? So VFS centers बहुत मल्टीपल कंट्रीज में ये एक है, और आपको इसलिए आपको स्लॉट बुक करना होता है फर्स्ट बिफोर visiting the VFS center, and you need to prepare the documents till that appointment is scheduled, right? उस दिन तक आपको टाइम मिलता है, तब तक आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हो, और एंड द डे ऑफ अपॉइंटमेंट यू नीड टू प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट योर पासपोर्ट. नाउ थिंग इज कि VFS में स्लॉट आप जब बुक करने जाते हो तो आप अगर ऊपर ऊपर से वेबसाइट लॉगिन करके देख लेते हो देयर इज अ स्लॉट अवेलेबल, and then you decide, okay, I will prepare a document like that and on this day I will book. But sometimes what happens, like, VFS gives false information like the slot is available, but it is not. When you go and actually book the time slot, right, date select हो जाती है, date दिखती है, but when you go and book time slot, that's when the VFS will say कि no, हमारे पास slot ही नहीं है, you need to book some other day, and days are like way ahead, like 15 days, 20 days. And since you already have prepared the itinerary and booked the flights and all, now this causes problem, because the safe sweet spot to get the visa application done is 45 days is what embassy says, but during peak days it might go beyond that as well. So to be prepared, you need to make sure, like, you are, whenever that appointment that you are going to book, and the travel date that you have, it should have at least 50 days buffer or 60 days buffer, I would say. और 2 महीने मतलब पहले आपको अप्लाई कर देना चाहिए वीज़ा, टू बी ऑन सेफर साइड. सो मेक श्योर, लाइक, VFS में आप लॉग इन करें एंड टाइम स्लॉट करें, और तब जो आपको एक्चुअल डेट दिखेगी, एज पर दैट यू प्लान योर आइटनरी. ओके,
because what I did as a mistake, मैं आपको बाद में बताऊंगा end में, and I'll also share a tip and how you can come over, like how you can resolve that issue. So next step is to after looking out for the dates available, right? Like after checking out that, सबसे first document that you need to make sure is ready is the visa form. Visa form, whichever country you are going to apply, they have their own website and portal where you can download the visa form. एंड यूजुअली वेबसाइट से ही सब मतलब आप प्री फिल्ड होके निकल जाता है. यू नीड टू सबमिट डिटेल्स. इट्स लाइक अ फॉर्म एंड इट विल गिव यू अ पीडीएफ फाइल एट द एंड which has all the details that you have mentioned. Second step is to get the passport ready, right? Like you need to have a passport. If without passport you cannot go out, obviously. Passport validity होना आपका valid होना चाहिए. I think 6 months validity होना चाहिए before entering the Schengen area. You guys can confirm that on all the embassy websites, and you will get all the details about the validity and how many empty pages you need for your passport. After passport you need the photos, right? Photos में आपका dimension जो होता है वो and all everything will be given on the embassy website, and most of the photographers you will go and tell them visa application के लिए चाहिए, they will get you correct details, correct size and dimension, but make sure you go and check the dimensions once. एंड इसमें भी एक डाउट आता है कि अगर मैंने 3 महीने पहले ली थी वेब फोटो और काम चल जाएगा क्या नहीं है. और it works. They say it should not be 6 months older. उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, बट मैंने तो उससे भी ओल्ड लगाई थी और मेरा वर्क किया था. बट मेक श्योर यू लुक वे सिमिलर टू दैट फोटो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी. जैसे आप 1 साल पहले बहुत मोटे थे और एकदम से पतले हो गए और आप वही फोटो लगा रहे, तो दैट वोंट वर्क. यू नीड टू मेक श्योर द फोटो इज मैचिंग विथ यू a bit. So after that this thing is done, photo, you need prints of your passport, right? Like print, like xerox copy में आपका first page रहेगा और last page रहेगा. और अगर आप वीज़ा आपके पास कोई है वैलिड वीज़ा राइट नाउ, लेट्स से आप यूएस वीज़ा you have on your passport, right? Like, or some other country visa, you can take a print out of that as well and you can attach with your application to make it stronger. But it doesn't matter, in case you are just applying the first page and last page, it works. Second है it's optional, so right. फिर इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज अ कवर लेटर. वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पीपल थिंक इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग दैट यू आर गोइंग टू टेल द consulate this is my itinerary and this is what I'm planning to, the purpose is tourism. But no, it should be a detailed cover letter. And if you're going right, if you're going along with your family, like I went with my brother, so you have to mention his details as well, like this is with whom I'm going, its passport number is this and all, and make sure whoever is going, you provide all details in the cover letter. And same cover letter will also be used in your other applicant, right? Like अगर मैं लगा रहा हूँ, मेरा भाई भी cover letter use करेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो cover letter use नहीं करेगा. He will also have his own cover letter जिसमें वो mention करेगा कि वो मेरे साथ जा रहा है. So this is very clear, right? After that cover letter में brief itinerary रहनी चाहिए आपकी. Brief itinerary I would say कि बहुत छोटा, like this is the days I'm going to visit this country, these are the dates I'm going to visit this country, I'm going to visit these places for, and मैं culture and उसको explore करने के लिए visit कर रहा हूँ. Purpose है tourism. एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है आपकी, आपको ये भी दिलासा दिलाना है उन्हें कि यू आर कैपेबल इनफ टू विजिट द कंट्री इन केस इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, यू हैव इनफ अमाउंट टू कम बैक एंड टेक केयर ऑफ थिंग्स, right? So all these details will be there, should be there in the cover letter. In case if you guys want the cover letter details, I'll provide you with that template and you guys can use it. Now second है flight. उसके बाद आता है itinerary, detailed itinerary. बहुत लोग ये करते हैं कवर लेटर में अपनी itinerary लगा लेते हैं and that works, but for my side, like as a first time applicant, I was super paranoid, right? Like I wanted to make things smoother, और मैंने सारी चीज़ें लगा दी जो भी लगाना चाहिए. तो मैंने एक आइटनरी, एक अलग से 3 पेज की आइटनरी भी बनाई थी, डिटेल्ड कौन सा होटल में रुक रहा हूँ उस दिन, किस दिन, क्या विजिट करने वाला हूँ, मतलब मेजर चीज फेमस प्लेसेस आई मेंशन इट इन माय कवर लेटर. और फिर मैंने ये था कि कौन सी डेट्स है और मेरी फ़्लाइट्स क्या है और कब मैं लैंड होगा और क्या नहीं, ये सब मैंने सब आइटनरी में प्रोवाइड किया था. आफ्टर दिस आइटनरी you go ahead and book your flights, right? Like flights मतलब पहले आप flight book करेंगे, करेक्ट. इसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है, what most of the people face is like कि they are worried because अगर वीज़ा नहीं मिला तो आपकी फ़्लाइट के पैसे चले गए, which is very true.
So I would suggest to book the flight with the cancelable, because ऐसा ना हो कि आपको टेंशन हो कि वीज़ा आ नहीं रहा है एंड आपकी फ़्लाइट्स के पूरे पैसे, होटल के पैसे लग चुके हैं और आप बहुत परेशान हो, आपका लॉस हो गया. हैपेंस टू सो मेनी पीपल, आई हैव सीन ऑन रेडिट. बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है एंड दे लूज मनी. In such cases, what you can do is like to get a dummy ticket, is what people suggest, or get a cancelable one. What I did as a personally, मैंने विदाउट कैंसिलेशन फ़्लाइट बुक कर ली थी. और मुझे एंड तक बहुत पर टेंशन थी कि यार वीज़ा आएगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पैसे तो लग चुके थे. बट आप मत करना, आप पूरे कैंसिलेबल वाली ही करना, क्योंकि पीस ऑफ माइंड मिलता है एंड इट हेल्प्स. इन केस इफ समथिंग गोज रॉन्ग, यू कैन गो एंड जस्ट कैंसिल इट. But if you are dare enough to buy a ticket and without cancellation, so उस केस में make sure like your documents are full, like everything they have mentioned, you have all the documents without any blunder, without any issues. Like it should be a smooth application. In such cases, you will see like it gets approved in the first attempt only, and cancelable के साथ जा सकते. But again, it's very risky. I would say कि आप cancelable करें. सेकेंड आता है ट्रेन रिजर्वेशन. फ्लाइट हो गया. नाउ कम्स द ट्रेन रिजर्वेशन. सो इफ़ यू आर विजिटिंग मल्टीपल शेंगन कंट्रीज, राइट, आप अगर तो मोस्टली पीपल प्रीफर कि दे ट्राई टू ट्रैवल बाय ट्रेन फॉर दिस, बिकॉज ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत सही है शेंगन एरिया में. फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री यू कैन ईजिली बुक एनी ट्रेन फ्रॉम एनी प्लेस एंड यू कैन गो. हम यूरोस्टार, NS are like very big this train services which runs on the Schengen area, और आप वो यूज़ करके आप यू कैन ट्रैवल टू एनी कंट्री. सो इस ट्रेन इसमें ये होता है कि ट्रेन रिजर्वेशन, whenever you going to go their website and book the train, you will get the tickets, you can use this as a reservation. फिर आता है होटल रिजर्वेशंस. Hotel reservations are like they should be again cancelable once, and amount paid हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि डेट you are booking it on the day you will visit and you will give the payment to the hotel, right? ऐसा ऑप्शन आता है, right, in booking.com और Agoda, pay at the hotel वाला. उस केस में ऐसा हो सकता है कि embassy might think कि okay, you can cancel this hotel stays and you can do some bad shit. तो ऐसा ना हो, you can go ahead and pay that hotel fee and book it with the cancellation. It's okay. Without cancellation also, again, if you're going forward with that, make sure your documents are safe, like you all are good, and you will be having a smoother application. In that case only you will be not worried about कि cancel हो जाता है तो क्या होगा, अगर वीज़ा cancel हो जाता है तो क्या होगा. फिर ट्रेन होटल रिजर्वेशन हो गया. मेक श्योर लाइक होटल रिजर्वेशन में अगर आपको वो मिलता है, राइट, कि ऑप्शन टू कौन कौन आपके साथ रुकने वाला है, राइट, यू आर गोइंग विद फैमिली एंड ऑल, तो मेक श्योर यू प्रोवाइड ऑल द नेम्स, बिकॉज वो रिजर्वेशन की डिटेल्स में आ जाता है एंड दैट हेल्प्स इन योर एप्लीकेशन. In case if it is not there, nothing to worry about. Make sure you mention all of these details in the cover letter. That's what I'm saying. cover letter में आपको जितने भी डाउट्स है आप वो सब क्लियर कर सकते हो. आप बोल सकते हो कि ये होटल के लिए यहाँ पे नेम नहीं था इसलिए आई हैव इंक्लूडेड, बट they are going to stay with me. This is the hotel details and number. You can check. ऐसा मतलब वो चेक भी करते हैं, they cross verify sometimes, so make sure like details are correct. After hotel reservation, the next thing is like the bank statements, right? Bank statements, 3 months bank statements बोलते हैं. I applied 6-month bank statement. It is up to us, but make sure the bank statement whenever you're going to take a print, right, that there is a sufficient amount in your bank. That's the reason they are asking for the bank statements and the money flow. So sufficient amount, अगर ये एक subjective thing है. Like mostly to be on safer side, I would say कि आप 2.5 lakhs या 3 lakhs रखिए अपने अकाउंट में पर पर्सन. लाइक हर एक का अकाउंट जो भी रहेगा, माइनर रहेगा तो आप वो तो आपके अंदर आएगा, बट other than other individuals, make sure they have their bank accounts, right? Like so in that case, keep 2.5 lakhs or 3 lakhs to be on safer side in each account, and take the print. After that you can do what you want to do with the money, right? They won't check, right? Like bank statement में आना चाहिए बस. तो make sure this is there, and then take the prints, right? 3 months की या 6 months की. Stamped होने चाहिए. Again, I'm mentioning this again. It's not digital copy नहीं लगा के चलेगा. आपको बैंक में जाके आपको प्रिंट लेके उस पर साइन और स्टैम्प लेना है आपके अकाउंट मैनेजर, बैंक मैनेजर, जहाँ से भी आपको मिलेगी. फिर आता है इसके बाद ITR. सो एम्प्लॉयड और बिजनेस पीपल के लिए अलग प्रोसेस है.
इन दिस वीडियो मैं आपको अपनी ही डिटेल्स बताऊंगा, मतलब मैंने जो प्रोसेस फॉलो की थी, क्योंकि मैं एम्प्लॉयड पर्सन हूँ, आई एम एन IT गाय स्टेज इन बैंगलोर। तो मेरा प्रोसेस तो बहुत सिंपल था। ITR हम फाइल, लाइक बिजनेस पीपल ऑल्सो अप्लाई फॉर द ITR। सो आपने जो भी लास्ट 2 ईयर्स की ITR है वो आपको एक्नॉलेज रिसिप्ट जो मिलती है आप जब मैं अप्लाई करते हैं ITR को, यू नीड टू डाउनलोड दैट। ITR 3 years का, 2 years का, whatever. I think they mentioned 2 years, but I applied for 3 years ITR, right? नहीं है, 2 years works. ITR आपको एक्नॉलेज रिसिप्ट मिल जाएगी। उसके बाद आती है 3 मंथ सैलरी, लाइक 3 मंथ सैलरी स्लिप्स। सैलरी स्लिप्स शुड बी, लाइक लेट्स से आप अप्लाई कर रहे हैं VFS में इन जून, तो जून की, अगर जून में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके मंथ, प्रीवियस मंथ से आपके पास तीनों सैलरी स्लिप होनी चाहिए। दैट मीन्स यू नीड सैलरी स्लिप फ्रॉम जून के पहले आता है क्या, अप्रैल मई जून, राइट? जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई, ये आपको 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप लगानी पड़ेगी अगर आपका अपॉइंटमेंट जून में है तो। दैट्स हाउ इट इज। सो 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप्स आपको लगानी है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, नाउ दिस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट योर ऑफर लेटर, और या जो भी आपने कंपनी में आपने ज्वाइन किया होगा, दे मस्ट हैव गिवन यू कॉन्ट्रैक्ट, राइट? लाइक यू आर गोइंग टू वर्क with these are the terms and conditions and all that, offer letter basically. So आपका employment contract should be the next document. After that you need an NOC from your company. आपको एक मेल लिखना होता है HR को that you are going to visit a Schengen, like you need a NOC letter for your visa, and you will tell them that you need this for Schengen visa. So they usually have a template, जो भी template के through बना के देंगे वो आपको works. But make sure there are certain details that are mentioned on that NOC, like you will come and resume your job after visiting the Schengen area. Okay, make sure this line is there because you in somehow you need to assure the consulate, right, कि आप वहाँ पे जाके रुक नहीं जाओगे, आप स्टेज जो आपको मिला है जितने दिन का रहने के लिए, उसके बियॉन्ड जा रहे हो, आप वही रुक रहे हो और आप अपने इलीगली एक्टिविटीज़ में कुछ इन्वॉल्व हो जा रहे हो, दे डोंट वांट दैट। सो यू नीड टू अश्योर कि आप वापस आओगे। अगर NOC में ये मेंशन होता है तो दे फील लिटिल कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपको बोल रहा है कि आप वापस आके काम करोगे, दे आर अश्योरिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए आपके NOC में। Credit card statement. Now these two documents that I'm going to talk about is like very optional. कि आपकी फंड कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए। वन इज की क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आप लगा रहे हो, और ये आप कवर लेटर में भी मेंशन करते हो कि मैं लगा रहा हूँ, यू कैन चेक माई फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। उसमें आपका कितना क्रेडिट अमाउंट आपको मिलता है जो, राइट, वो दैट हेल्प्स इन बैकिंग अप यू। सो दूसरा होता है CDSL का इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट, राइट, लाइक इन केस इफ यू हैव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स और एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट, यू कैन मेक श्योर कि आप वो भी लगा सकते हो। सो टू मेक श्योर कि आपका एप्लीकेशन स्ट्रांग बने एंड दे फील कॉन्फिडेंट दैट यू हैव इनफ मनी टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। मैंने अपने केस में क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी लगाया था, और CDSL का एक इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट मिलता है दैट यू गेट फॉर योर म्यूचुअल फंड स्टॉक, सो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ID कार्ड फॉर योर as an in which company you are like you work, you can provide an ID card of that. उसके बाद आता है rent agreement. Now that I stay in a rented flat, right, like उस केस में ऐसा होता है कि you need to provide a rent agreement. बट थिंग इज कि अगर आप अपना पासपोर्ट एड्रेस जो आपकी पासपोर्ट में मेंशन है, परमानेंट एड्रेस, राइट, इफ़ यू आर स्टेइंग देयर, राइट, लाइक तो आपका ऐसा होता है कि सर्टन कंट्रीज हैव देयर ओन रूल्स। नीदरलैंड में ऐसा नहीं था कि आप अगर मुझे नागपुर से पासपोर्ट इशू हुआ है तो मैं महाराष्ट्र से ही अप्लाई, मैं महाराष्ट्र के ज्यूरिडिक्शन में आ जाऊँगा, ज्यूरिडिक्शन में, और उसके ज्यूरिडिक्शन में, और ये वर्ड थोड़ा अलग सा है, थोड़ा ठीक है, तो ज्यूरिडिक्शन में आएगा महाराष्ट्र के, एंड आई कैन ओनली अप्लाई थ्रू महाराष्ट्र। देर आर सर्टन कंट्रीज विच फोर्स यू टू फॉलो दिस रूल, जैसे कि आई थिंक इटली डज दैट, कि मैं इटली कंसलेट में अगर मैं अप्लाई करूँ कोई भी, तो VFS सेंटर मुझे बोलेगी कि VFS वाले मुझे बोलेगी कि आपको इटली मुंबई कंसलेट में ही अप्लाई करना है, तो आपके लिए ये वाला VFS सेंटर ही अवेलेबल है, या इसी सिटी में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बट नीदरलैंड हैज़ नो ज्यूरिडिक्शन रूल, सो आप कहीं से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं थ्रू आउट द इंडिया। सो मेरे लिए, मैं बैंगलोर से अप्लाई कर रहा था,
तो बेंगलुरु में अप्लाई करते वक्त उन्होंने वो पूछते हैं एड्रेस, राइट, लाइक एड्रेस प्रूफ, राइट. इफ इट इज पासपोर्ट वाला आपका एड्रेस, then it's fine. But in case if the address right now you are staying in, if you are staying in some other apartment, like they, if you are mentioning that address in your visa form, तो आपको रेंटेड अग्रीमेंट लगेगा. नॉट जस्ट दैट, आपको रेंटेड अग्रीमेंट में आपके जो भी अप्लीकांट्स है उनका नेम भी होना चाहिए, मतलब वो भी उनका रेंट अग्रीमेंट अलग सा उनका जो है, और वो नोटराइज होना चाहिए. दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सो मेनी पीपल फॉरगेट टू टेल कि रेंट अग्रीमेंट तो बहुत सही बन जाता है एकदम तुरंत, ऐसे असाइनमेंट मिल जाता है, बहुत बढ़िया. आपका ओनर, रेंट फ्लैट ओनर जो भी है, प्रॉपर्टी ओनर, वो आपको दे देता है, बट नोटराइज नहीं होता है वो यूजुअली, तो आपको नोटराइज करना होता है. दैट्स व्हेन इट इज कंसिडर्ड एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट. अदरवाइज VFS विल टेल यू एंड गो बैक, और आप वापस ले नोटराइज लेकर आओगे, अपॉइंटमेंट न्यू बुक कीजिए. ये सब प्रॉब्लम ना है तो नोटराइज रेंट अग्रीमेंट लगता है, ठीक है. देन कम्स दी ट्रैवल इंश्योरेंस. ट्रैवल इंश्योरेंस यू नीड टू मेक श्योर कि इट्स कवर्स 30,000 euro का fund. Okay, it and you can buy it from VFS website. They give some partner, they have some partners, health insurance providers, जो आपको health insurance provide कर सकते हैं. I will suggest कि आप कोई भी पॉलिसी बाजार या आप कोई भी कंपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स है उनकी डायरेक्ट वेबसाइट से परचेस कर लीजिए. इट इज़ way cheaper than VFS and it works. For me, I bought a Care Health Insurance, travel insurance. There is AXI and lot of other companies which provides good health insurance. और 50,000 USD का था मेरा. They say 30,000 euro का cover होना चाहिए. So I think it's equivalent to be on safer side, is equivalent to 40,000 USD. But I went and bought 50,000 USD. Now problem here also, one doubt comes is कि हेल्थ इंश्योरेंस की डेट्स क्या होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक कवर होना चाहिए. सो इट शुड स्टार्ट बिफोर योर ट्रैवल डेट. डेफिनेटली 1-2 दिन पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए आपका ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस. और आपके ट्रिप के एंड जिस दिन हो रहा है उसी दिन आप ख़त्म कर सकते हैं. बट मैंने बहुत रिसर्च, मतलब रेडिट एंड ऑल ऑन पीपल को अप्रोच पूछने के बाद ये कंफर्म किया था कि टू बी ऑन सेफर साइड, मेक श्योर यू इंक्रीज द डेट ऑफ योर ट्रैवल इंश्योरेंस एंडिंग डेट टू 15 days after that you come back to your own city. Like let's say मेरा ट्रैवल जर्नी था फ्रॉम 1 जून से 15 जून. तो मैंने मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो मैंने मई के 28 से लेट से बुक कर लिया और जून के 20th तक बुक कर लिया, या पूरा जून मंथ ही बुक कर लिया. तो ये डेट आप डाल सकते हैं अपने ट्रैवल इंश्योरेंस में एंड इट वर्क्स. टू बी ऑन सेफर साइड, डू दैट. 5 days का बफर बिफोर योर ट्रैवल डेट एंड 15 days का बफर आफ्टर योर ट्रैवल डेट, या 10 days का बफर आई वुड से. फिर ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के बाद आपका आता है वीज़ा फ़ी और VFS अपॉइंटमेंट. जैसे मैंने बताया था, पहले ही बुक कर लेना आपने देख के. VFS अपॉइंटमेंट की फ़ी होती है कुछ नॉमिनल सी, और वीज़ा फ़ी अभी हो चुका है 90 euro, पहले 80 euro था. 2024 के जून में एक देयर वाज अ गाइडलाइन दैट गॉट चेंज्ड एंड दे रोल्ड आउट न्यू गाइडलाइन दैट now the visa fee will be for adults it will be 90 euros, which is somewhere around 8,200 rupees. So this and the VFS fee around 10,000 का खर्चा आ जाता है for just for fee, documents and all you need to prepare, और fee flights and all you need to prepare. ये हो जाने के बाद after this your documents are, I believe, all are complete and it's a strong application. You should be good to get the visa. बट इसके अलावा जो कुछ टिप्स मैंने जो बताई थी ये रहेगी कि VFS के एप्लीकेशन पोर्टल में लॉगिन करके टाइम डेट देख के ही उसके अकॉर्डिंग अपना आइटनरी बना के मत कीजिएगा. डेट देख के टाइम स्लॉट जब बुक करने जाओगे then that's when you see the actual dates that are available for VFS appointment. You can go and book the appointment. You don't have to keep the documents ready before, like during booking the appointment. अपॉइंटमेंट बुक करते हो आपको सिर्फ वो आपका पासपोर्ट डिटेल मांगता है, ओके, एंड और फी मांगता है कि आप पे कर दीजिए हाफ, और उसके बाद रिमेनिंग वो आपको VFS सेंटर में पे करना होगा. तो आप वो बुक कर सकते हैं विदाउट इवन बुकिंग योर फ्लाइट्स एंड ऑल, एज पर योर आइटनरी बुक दैट डेट. और उसके वो डेट्स के अकॉर्डिंग आप आइटनरी प्लान कर सकते हो, क्योंकि वो डेट से 45 days बफर लेके चलिए. 45-50 days का एटलीस्ट 60 days आई वुड से सेफर साइड के लिए. और उसके बाद अपनी ट्रैवल आइटनरी स्टार्ट कीजिए, मतलब ट्रैवल स्टार्ट कीजिए, राइट. सो ये करके आप जब अश्योर हो जाएंगे, ये डेट आपने बुक कर ली लेट्स से कुछ 15, तो आपको उस टाइम तक आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं, आप अपनी फ़्लाइट्स बुक कर सकते हैं और वो सब कर सकते हैं.
दिस इज वन स्टेप दैट वेयर आई वेंट रॉन्ग। मैंने अपने डेट्स फ्लाइट्स आइटनरी VFS के स्लॉट को देख के बना ली थी, लेकिन जब मैं टाइम लॉग इन करके जब मैं पूरा टाइम स्लॉट बुक करने गया तो वो डेट पूरी ही मेस्ड अप थी। इट वॉज स्टिल शोइंग सम अदर डेट, और जब मैं बुक करने गया तो इट वॉज शोइंग मी सम वेरी फार डेट, लाइक तो मैं थोड़ा फंस गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो फ्लाइट भी कैंसिलेबल नहीं की है, और अगर मुझे नहीं मिलता है तो आई विल बी ऑन वेरी टाइट शेड्यूल। वीज़ा मिला और मेरी तुरंत, ऐसा भी होता है लोगों का कि तुम्हारी अगले दिन फ्लाइट है तो तुम्हारा वीज़ा कल रात को आ रहा है, या कल आ रहा है, या एक हफ्ते पहले आ रहा है, ये सब भी होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। सो मेक श्योर दैट यू डू प्रॉपरली मेक प्लान, check the VFS date, as per that plan your flight dates, उसके अकॉर्डिंग सब कीजिए। Cool. These are the details. Also there is there are so many telegram bots जो बने हैं, जो आपको VFS slot चेक करते रहते हैं, और even though if you don't get slot you book the nearest one, ऐसा भी होता है कि slots available हो जाते हैं, like it shows out like there are no slot, but sometime after that you they roll out new slot और आपको मिल सकता है new slot, तो आप continuously चेक करते रहिए, आपको मिल भी सकता है slot जल्दी। और देर आर सम टेलीग्राम बॉट्स विच टेल्स यू, नोटिफाइज यू कि स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं। आई माई सेल्फ हैज़ डेवलप्ड अ टेलीग्राम बॉट दैट इज़ ऑन माई गिटहब रेपोजिटरी, और वो आपको मेरी डिटेल्स अगर चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फॉर दैट यू जस्ट नीड अ मैकबुक एंड पाइथन स्क्रिप्ट होती है वो जो चलती है, और वो आपको नोटिफाई करती रहती है आपके टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये एक रहेगा, यू कैन गो एंड चेक दैट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर joining and thanks for watching this video. I hope this helps, and make sure like कि आपका सारे documents ready हो, and I think you will be good. You will get the visa in the first attempt itself, as I got my visa. So hope that you follow all the instruction, or all the best, and happy journey and all the best. Thank you.